Students, good morning, good afternoon, good evening. This is your English teacher. Today we are going to cover the most difficult and as well as easy concept of your English question paper, that is reading comprehension. Before this starting, I wish and I also hope that you are healthy, fit and fine at your home with your whole family, okay, and enjoying the online study. Okay, today in this video we are going to cover this reading comprehension, this concept. And I know that we all students attempt this portion, but sometimes it could be difficult, sometimes it could be easy. It's totally depend on the way you are attempting the questions of reading comprehension. Okay, sometimes students are not able, sometimes students are not aware also how to attempt these questions. Okay, in this video you are going to learn that what is the right way of attempting the question and what are the some short tricks to solve the unseen passages comprehension. Okay, so in this first of all we'll understand what is the comprehension. Comprehension means to understand anything. Okay, and in this, through this comprehension, actually examiner wants to check your comprehension level. That means your understanding, not your not only grammatical skills but your understanding. Okay, to check your IQ level. Okay, that how much you understand and how you understand anything, how you and you can also use your, you have, this is comprehension means to understand, so answers may be vary. Okay, so first of all we'll check the structure of comprehension, types of questions. In this time you will have one word answers. Okay, one word answers, and that would be MCQs, and there will be 6 questions and you have to attempt any 5 questions only. Okay, first question, first paragraph, you would have two paragraphs, but this is first paragraph, first question MCQ. You would have their alternatives, options. Okay, and you have to attempt 5 from 6 question, 5 marks. Okay, so if it is one word, so you have to write the tick only one word. Okay, next question would be 1 or 2 line answers. Okay, one question, 1 marks, 5 questions. if it is 1 mark, so you no need to write the whole paragraphs. कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि एक मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा एक वर्ड ढूंढ रहे हैं और उसके लिए कम से कम 4-5 लाइन या आधा पेज या उससे ज़्यादा लिख लेते हैं. दिस वेस्टिंग, पूरा वेस्टिंग है ये. 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, कितने भी लिखो, 1 मार्क मिलना है. और अगर 1 पेज होगा तो हो सकता है ना भी मिले. ओके, तो 1 लाइन का आंसर, या मुश्किल से हो सकता है कोई थोड़ा सा हो तो 2 लाइन का आंसर, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं. ओके, ये तो आपको पता है, इसमें 1 वर्ड में आपको आंसर बिल्कुल आपके पास ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन चूज करना है. ओके, फिर होंगे सिनोनिम्स. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 MCQs 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 5 क्वेश्चन, 1 लाइन. क्वेश्चन 3 जिसमें क्या पूछा होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होगा, फ्रेजेस होंगे, कुछ टाइटल हो सकता है. ये आपका थर्ड क्वेश्चन होगा. इसमें 2 वर्ड्स होंगे 2 मार्क्स के, तो 5, 5, 10 एंड 2, 12 मार्क्स. अगला पैराग्राफ होगा 8 मार्क्स. टोटल 20 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा. कैसे अटेम्प्ट करना है इन क्वेश्चंस को? ओके, तो उसके लिए आपको, आपके पास क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा रीड द पैराग्राफ केयरफुली. तो क्या करोगे, पहले आप पैराग्राफ पढ़ोगे एक बार, पूरा पैराग्राफ. उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढते समय फिर दोबारा पैराग्राफ पढ़ोगे. नो नो नो, दिस इज ऑल्सो वेस्टिंग ऑफ टाइम. ऐसा नहीं करना है. क्या करना है, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, सीधा क्वेश्चन की तरफ. क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, और जिसकी मैक्सिमम 99% प्रोबेबिलिटी होगी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है वो आपके पास, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर पड़े होंगे और पैराग्राफ्स दे रखे होंगे. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा. सेकंड क्वेश्चन होगा जो उसका आंसर आपको सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में मिल जाएगा. जो थर्ड क्वेश्चन होगा, ऐसे ही सारे आंसर्स आपको सीक्वेंस में मिलेंगे. यानी कि आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ढूंढते ढूंढते इस तरह से चलते रहना है. दूसरी ट्रिक आपने इसमें क्या यूज़ करनी है, अंडरस्टैंड इंग्लिश टू इंग्लिश. आपको किसी भी चीज़ को उसका हिंदी ट्रांसलेशन पे नहीं जाना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन इंग्लिश टू इंग्लिश. आपको उसको समझना है. कैसे, सपोज एग्जांपल है, राहुल नोज टेलीपैथी. अब हम ढूंढ रहे हैं टेलीपैथी क्या है, इसका मीनिंग हमें पता हो तो हम आंसर ढूंढ पाएंगे. नो,
क्वेश्चन समझ गए? राहुल, ये समझ में आ गया, राहुल नोज टेलीपैथी, यानी कि ये टेलीपैथी जानता है। अब क्वेश्चन है हु नोज टेलीपैथी? राहुल नोज टेलीपैथी। अब इसका कोई भी मीनिंग हो, कोई भी इसका कुछ भी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इंग्लिश टू इंग्लिश इस तरह से चलेंगे। ओके, टेंस इंपॉर्टेंट होंगे, आप जब आंसर लिख रहे होंगे इस तरह के वन वर्ड, तो इसमें आपके क्या होंगे, टेंस इंपॉर्टेंट होंगे। वो आपको बताया भी जा चुका है, पढ़े भी हैं, नहीं है तो आप फिर देख सकते हैं। ओके, एंड अटेम्प्ट अपोजिट सिमिलर टाइटल एट लास्ट, आपको ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस करने हैं, और ये जो क्वेश्चन होंगे अपोजिट यानी कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या टाइटल पूछा होता है, कभी फ्रेजेस होते हैं, सबसे लास्ट में आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि अब आप कभी कभी ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में होंगे, तो आप एक बार इनको ढूंढने, एक वर्ड को ढूंढने के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको इनके लिए भी दोबारा पैराग्राफ पढ़ना है। तो इसलिए इनमें क्या होगा कि आप जब इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ चुके होंगे, ये वर्ड आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपकी नज़र में आ चुके होंगे, जो आपको लास्ट तक मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द वे। और एक चीज़ में ध्यान देनी है कि 1 मार्क्स है तो ये तो वन वर्ड है, इसमें 1 और 2 लाइन्स, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, और हो सके तो बल्कि 2, 3, 4 वर्ड्स में इसका आंसर आपको मिल सकता है, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स में। ओके, यानी कि मुश्किल से 1 लाइन में। तो इस तरह से करना है। अब हम इसी को करके देखते हैं। ये हमारे पास एक पैराग्राफ दे रखा है, तो अब इसमें लिखा हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो क्या रीड करेंगे? नहीं, हम सीधे जाएंगे पीछे इधर। ओके, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है। ओके, अ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इज हिंडर्ड बाय, फिर ये वर्ड आ गया हिंडर्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो इसी वर्ड को ढूंढ लेते हैं। तो आपको क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका आंसर फर्स्ट में मिलेगा, फर्स्ट में ढूंढेंगे। अब ढूंढते ढूंढते हमें यह वर्ड मिल गया हिंडर्ड। ओके, तो ये मिल गया तो हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा। ओके, तो ये इस यहाँ पर इसका आंसर है लिमिटेड द बाउंड्रीज ऑफ, लिमिटेड education academic boundaries. Okay, second, the shift in the education system means, shift of education system means, okay, यहाँ पर हमारे पास इसमें आपको क्या दे रखा है, ये अल्टरनेटिव दे रखे हैं, इनकी मदद से भी आप ढूंढ सकते हैं। तो ये हमको सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट। तीसरा अगर हम देखें क्या लिखा हुआ है, को करिकुलर एक्टिविटीज टेक प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम डू नॉट हेल्प। इसको हम खुद भी समझ सकते हैं, कोर करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करती हैं। वैसे हम इसको ढूंढेंगे, थर्ड पैराग्राफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमें मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम इसको समझना चाहें तो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो हम करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो इसको हम थोड़ा माइंड लगाएंगे तो क्या होता है कि ये किस चीज़ में हेल्प नहीं करती हैं, टीम वर्क में तो करती हैं, मेंटल सोशल ग्रोथ, सोशली ग्रोथ होती है, बाहर सोसाइटी में हम जाते हैं, कैरेक्टर भी बिल्डिंग होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये हो सकता है, ये होगा इसका आंसर। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है गेस्ट स्पीकर्स टॉक अबाउट करिकुलर। अब ऊपर से दोबारा पढ़ेंगे नहीं, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है, करिकुलर्स हो गया, गेस्ट स्पीकर्स टॉक अबाउट, गेस्ट स्पीकर्स टॉक अबाउट ये हमने कर लिया। अब चौथे में हम देखेंगे तो इसमें हमको मिल जाएगा स्पीकर्स, गेस्ट स्पीकर्स टॉक अबाउट रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मिल गया, यस। उसके बाद क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, आगे बढ़ेंगे अगले पैराग्राफ में, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स फाउंडेशन, ये इसका आंसर मिल गया। लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक फैसिलिटीज, इसका आंसर और आगे मिलेगा, ये है लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक, ये आपका आंसर मिल गया। ओके, यानी कि सारे क्वेश्चन के आंसर्स क्या थे, बिल्कुल सीक्वेंस में थे, हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते आए और हमने इनको सॉल्व करते करते पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया। सेम हम इनमें भी वही फॉलो करेंगे, जो ये क्वेश्चन है सेम हम इनमें भी वही चीज़ फॉलो करेंगे। ओके, ये 5 क्वेश्चन हमने 6 सॉल्व किए। ओके, इसमें से आपको कोई 5 करने, ध्यान देना है, मैंने 6 बताए, आपको कोई 5 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कोई 5 होंगे, 8 टिक वाले हैं। ये हैं 1 वर्ड वाले, इनके 1 लाइन में आंसर, फिर वही ढूंढोगे सीक्वेंस में मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम पैसेज सिमिलर, सिमिलर ढूंढना है, अनट्रू के सिमिलर ढूंढना है। तो अनट्रू सामने दे भी रखा है पैरा 1, इसका आंसर कहाँ मिलेगा, पैरा 1 में। तो हम इसके लिए गए पैरा 1 में और कहीं नहीं देखना है हमें। और यहाँ पर जाते अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको इजीली वो वर्ड मिल जाएगा, जो है HOAX, हॉक्स।
ये लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे है। ओके, अगला है कोऑपरेटिव एफर्ट। अब कोऑपरेटिव का मतलब हमें मालूम है कोऑपरेट करना, तो इसका हमें इजीली आंसर मिल सकता है कि कोऑपरेटिव एफर्ट का मतलब और इसमें हिंट भी है कि पैरा 3 में, तो पैरा 3 में हम जाएंगे, इसमें ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा कोऑपरेट करना, है ना, एफर्ट, तो क्या मिल जाएगा, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह से क्या हुआ, हमें सारे क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस से मिल गए। इसी की तरह से आपने सॉल्व करना है। आपको मैं जो ट्रिक बताई इसको आपने दिमाग में रख के बिल्कुल इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।